Hello everyone. So today we are going to do, as we discussed in the last video, now we are going to do a difficult question of payroll statement, that is in the course of BCom Honors in Delhi University in the subject Computer Applications in Business, as well as in BCom program semester 3. So this question goes like, from the following particulars, compute the salary of Mr. X for the financial year 2011-12, starting from March 2011 to February 2012. Now, here there is only one employee, and of this employee, we have to make the payroll statement for 12 months. That means for the whole financial year, starting from March 2011 to February 2012. The components are basic salary, dearness pay, dearness allowance. Month of increment is also given, so we have to provide the increment also in the basic salary in this question. Then HRA, traveling allowance, city compensatory allowance, gross salary is the sum of all the basic salary and the allowances. Then there are two deductions in this question. One is gratuity provident fund and the other one is income tax. And after deducting both of these from the gross salary, we arrive at the net salary. So this is the whole structure of the payroll statement that we have to make. But this question is different as there is a pay band given. What do you mean by pay band? That employee is falling in a pay band of 10,000 to increments are rupees 325 every year till he reaches the amount 15,200. So we are not sure कि इसमें से अभी at present Mr. X कौन सी वाली basic salary draw कर रहे हैं. All right, for this purpose, first we have to calculate the basic salary on the basis of this pay band. तो कैसे हम इसको करेंगे? I will write basic salary here. ठीक है, जो start होगी कहाँ से? 10,000 से. Every time he or she will get the increment of 325. ठीक है, और जो भी चीजें हमें given है, let us first write those write that information here. हमें बेसिक सैलरी से स्टार्ट करना है कि वो बेसिक सैलरी कितनी ड्रॉ कर रहा है इन द मंथ ऑफ मार्च 2011. वहां से हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा. ऑल राइट, आफ्टर दिस we also have to see whether what is the month of increment, because हम क्या कर रहे हैं, हम 12 months का पेरोल बना रहे हैं. ठीक है, उस 12 months के पीरियड में कभी ना कभी तो उसका मंथ ऑफ ज्वाइनिंग आएगा या प्रमोशन डेट आएगा एक बार, जब उसकी सैलरी में वो इंक्रीमेंट लगेगा और उसकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी. वो मंथ ऑफ इंक्रीमेंट कुछ भी हो सकता है. सिंस क्वेश्चन इज साइलेंट एंड वी हैव टू मेक अ जनरलाइज्ड वर्कशीट, तो मुझे इन दोनों के लिए यूजर को एक फ्री हैंड देना होगा कि वट एवर सैलरी the user can choose, whatever month of increment the user can choose. ठीक है, also we know that amount of increment is 325. ये हमें कैसे पता लगा? ये हमें पता लगा जो हमें पे बैंड दिया है, ये 10,000 to 325 का, हमें यहां से पता लगा. ठीक है, अब यहाँ पर हम बेसिक सैलरी का एक बार बना लेते हैं कि 325 लग के टिल 15,200 कौन कौन से अमाउंट्स हमारे पास आ सकते हैं. तो या तो 10,000 की बेसिक सैलरी होगी उसके पास, या फिर 10,000 में 325 का इंक्रीमेंट लगेगा. एंड लेट मी फिक्स दिस 325. उसके बाद जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो हम देखेंगे कि कौन कौन से अमाउंट्स हमारे पास आ रहे हैं. ठीक है, नाउ
इनमें से कोई भी अमाउंट पे मिस्टर एक्स माइट हैव जॉइंड द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि इसी पे बैंड में ही आपको बेसिक सैलरी मिलेगी, आप अपने आप से कोई अमाउंट नहीं ले सकते, ठीक है। तो जब मैंने बोला कि हमें यहाँ पर यूजर को एक फ्री हैंड देना है क्योंकि हम जनरलाइज वर्कशीट बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे डेटा वैलिडेशन का। नाउ हाउ डू वी यूज डेटा वैलिडेशन? गो टू डेटा, जहां पर आपको लगाना है डेटा वैलिडेशन उस सेल पे अपना कर्सर रखिए, गो टू डेटा, नाउ हियर गो टू डेटा वैलिडेशन, दिस इज द आइकन ऑफ डेटा वैलिडेशन। यहाँ पर वो पूछेगा कि आपको कौन कौन सी ऑप्शंस देनी है, तो हमारी ऑप्शंस एक लिस्ट में है, दिस इज द लिस्ट जो हमने अभी बनाई है। यहाँ पे हमें उसका सोर्स देना है, तो लेट अस सिलेक्ट द सोर्स एंड देन क्लिक ऑन ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे आप देखेंगे आपका यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बटन आ गया है जिसमें ये सारी ऑप्शंस आपके पास हैं। तो आप अपने क्वेश्चन में कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें से कोई भी अमाउंट लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। सपोज आई हैव टेकन दिस अमाउंट। सिमिलरली फॉर मंथ ऑफ इंक्रीमेंट, जब मैं मंथ की बात करूंगी तो मंथ जो है वो जनवरी फरवरी, 1 2 3 स्टैंड्स, 1 स्टैंड्स फॉर जनवरी, 2 स्टैंड्स फॉर फरवरी, लाइक दिस। एंड ये हम 12 तक का यहाँ पर एक काउंटिंग ले लेंगे और यहाँ पर भी हम डेटा वैलिडेशन लगा करके इस 1 to 12 को यहाँ पर लिस्ट में डाल देंगे, ठीक है। इससे होगा क्या, आपकी जो शीट है वो जनरलाइज्ड शीट बन जाएगी। जैसे आप पूरी शीट में इन्हीं सेल रेफरेंसेस को दोगे सो दैट अगर यही शीट को मैं यूज कर रही हूँ किसी और एम्प्लॉय का पेरोल बनाने के लिए और उसकी बेसिक सैलरी डिफरेंट है, तो यहाँ पर डिफरेंट अमाउंट लेते ही आपकी पूरी शीट ऑटोमेटिकली उस अमाउंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। आई होप इज दिस इज क्लियर टिल नाउ। इसके बाद हमने इतना काम कर लिया, ये सारा हमारा प्रिलिमिनरी वर्क है। हमने बेसिक सैलरी के लिए ड्रॉप डाउन बना दिया, हमने मंथ ऑफ इंक्रीमेंट के लिए ड्रॉप डाउन बना दिया। अब हम एक बार क्वेश्चन को भी रीड कर लेते हैं कि क्वेश्चन में कुछ और तो नहीं है जो हमें डालना है। बेसिक सैलरी, अलाउ एनी बेसिक सैलरी, सो फॉर allowing any basic salary we have put a drop down button here using data validation. dearness pays 50% of basic salary, बहुत ही सिंपल है। डीए, अच्छा डीए का ये जो पॉइंट है ये मैं आपको जब हम डीए पे पहुंचेंगे तो बहुत अच्छे से आई विल एक्सप्लेन कि ये क्या कहना चाह रहा है। अभी फॉर द टाइम बीइंग लेट अस skip this part. Month of increment is dependent on joining, तो उसके लिए भी हमने एक फ्री हैंड दे दिया because we are not, the question is silent on the month of increment thing, so हमने वहां पर भी एक ड्रॉप डाउन दे दिया है। HRA is to be paid 30% of basic plus DP to those whom HRA payable is yes. अब मिस्टर एक्स को HRA मिलना है नहीं मिलना हमें नहीं पता, अगर मिलना है तो हम HRA कैलकुलेट करेंगे 30%, नहीं मिलना तो हम चाहते हैं वहां पर ऑटोमेटिकली 0 आ जाए। फॉर दिस थिंग अगेन आई एम गिविंग अ फ्री हैंड, आई एम राइटिंग हियर इज HRA पेबल और यहाँ पर भी मैं ड्रॉप डाउन लगाना चाहती हूँ, बट सिंस हमारे पास दो ही चीजें हैं, दो ही ऑप्शंस हैं इसके लिए, इधर यस और नो, हमें लिस्ट टाइप करने की जरूरत नहीं है। हम सिंपल डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, हम लिस्ट चूज करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे यस कॉमा नो एंड क्लिक ऑन ओके, तो यहाँ पर आपको पास यस और नो की ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। अगर आप इसको यस करोगे तो मिस्टर एक्स का HRA कैलकुलेट होगा, नो करोगे तो नहीं होगा। अब देखते हैं कि कैसे। लेट्स मेक अ टेबल नाउ। टेबल में सबसे पहले आप लिखेंगे मंथ, क्योंकि हमने कब से स्टार्ट करना है, हमने स्टार्ट करना है मार्च 2011 से और हमने कहां तक लिखना है इसको, टिल February 2012, सो लेट्स ड्रैग इट टिल February 2012। ये आपके मंथ्स का कॉलम बन गया। नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे बेसिक सैलरी का। बेसिक सैलरी के बाद नेक्स्ट इज
DP, then DA, then HRA, DP, DA, HRA. ओके, बिफोर HRA एक कॉलम और यहाँ बनेगा DA एरियर्स का। आई एक्सप्लेन यू इसके बारे में। HRA के बाद TA, then city compensatory allowance, then gross, then GPF, then IT, and then net salary. So for net salary, I need to insert a column here. All right. So this is net salary. So this will be our total payroll schedule that we have to prepare. I hope till this it is clear. Now, coming to basic salary. अब basic salary में आपका जो आपने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है बेसिक सैलरी इन द मंथ ऑफ मार्च, तो ये मार्च 2011 की ही सैलरी है। हम इसी को एज इट इज यहाँ लिख देंगे, बट अगेन आई एम रिपीटिंग, वी विल मेक मैक्सिमम यूज ऑफ सेल रेफरेंसिंग, ठीक है, सो दैट यहाँ मैं जैसे ही चेंज करूं तो मेरी शेड्यूल में अपने आप बेसिक सैलरी चेंज हो जाए, ठीक है। ये मेरा बेसिक सैलरी आ गया फॉर द मंथ ऑफ मार्च। कमिंग टू अप्रैल, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जैसे आप मार्च का तो आपने यहीं पर लिखा है तो आपने यहाँ से इसको एज इट इज कर दिया। अब अगर मैं मैनुअली चेक करूं कि कौन सा मंथ ऑफ इंक्रीमेंट है, 5th मंथ है, दैट मीन्स मई, तो मई में इसका इंक्रीमेंट लगेगा। आई शुड ऐड 325 टू दिस बेसिक सैलरी, देन व्हाट इज द यूज ऑफ एक्सेल। So for this thing I'll be using a formula, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है मंथ ऑफ इंक्रीमेंट। इट कैन बी अप्रैल, इट कैन बी जनवरी, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम मार्च, बिकॉज हम यहाँ पर मार्च की तो लेके ही चल रहे हैं, ठीक है। अगर इधर अब बेसिक, अब उसको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि मैं कौन से मंथ की बेसिक सैलरी यहाँ पर लिखना है। अगर ये वाला मंथ जो यहाँ है अप्रैल 11, इफ दिस इज इक्वल टू द मंथ ऑफ इंक्रीमेंट, तो उसको बेसिक सैलरी में इंक्रीमेंट ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो उसको पीछे वाली बेसिक सैलरी ही यहाँ पर कॉपी करनी पड़ेगी, राइट। तो क्योंकि कंडीशन इन्वॉल्व है यहाँ पर, तो वी विल यूज इफ। अब इफ हमने लगा दिया, हमारी कंडीशन है कि इधर जो मंथ लिखा है इस डेट में, अप्रैल 2011 इज अ डेट, इस डेट में जो मंथ लिखा है उस मंथ को ये मैच करेगा मंथ ऑफ इंक्रीमेंट से। तो अब यहाँ पर कौन सा मंथ है ये कैसे पता चलेगा, हम उसके लिए एक फंक्शन का यूज करेंगे। हम उसको कहेंगे H7 में जो मंथ है वो मंथ देखो, ठीक है, मंथ इन H7 उसको मैच करो मंथ ऑफ इंक्रीमेंट से, ठीक है। अब मंथ ऑफ इंक्रीमेंट तो इसी सेल में है, ये तो फ्रीज करना पड़ेगा हमें, इसको हमने फ्रीज कर दिया। मंथ ऑफ इंक्रीमेंट अगर इसके इक्वल है तो जो बेसिक सैलरी इसके ऊपर वाले मंथ में थी, मार्च में थी, उसमें आप ऐड कर दो अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट। अगेन अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट को मैं फ्रीज कर देती हूँ। और अगर ये मंथ इसके इक्वल नहीं है तो इसी बेसिक सैलरी के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। So this is how your function will become. I am repeating, if month in this cell H7 is equal to month of increment, then add the amount of increment in the basic salary drawn in the previous month. Otherwise, let us continue with the basic salary of the previous month. All right, press enter, क्योंकि ये सेम था तो हम उसने प्रीवियस मंथ की ही बेसिक सैलरी के साथ कंटिन्यू कर दिया। इसको हम ड्रैग कर देंगे तो आप देखो मई में उसने बेसिक सैलरी इंक्रीज कर दी बाय द अमाउंट 325। अब
यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, जैसे ही आप बेसिक सैलरी इंक्रीज करोगे अपनी, आपका पूरा शेड्यूल अपने आप चेंज हो गया। जैसे ही आप मंथ ऑफ इंक्रीमेंट चेंज करेंगे अपना, तो भी आपका पूरा शेड्यूल चेंज हो जाएगा। आपने मंथ ऑफ इंक्रीमेंट 9 कर दिया, तो आपका इंक्रीमेंट कब लगा? सितंबर मंथ में। All right, this is how basic salary is to be written. Coming to dearness pay. Now here, dearness pay is question में it is written, it is 50% of basic salary. बहुत ही simple है, 50% multiplied by basic salary. Press enter and then drag it. आपके पास basic salary आ जाएगी. Again, if we want it to be in a round figure, we will use the function round. Bracket starts up to how many decimal places? 0 decimal places. Press enter. So this is your dearness pay. Coming to dearness allowance, the main thing in this question is DA, that is DA rates. अब DA को एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं. DA as a percentage of basic plus DP. ये तो क्लियर है कि DA हमें देना कैसे है? As a percentage of basic plus DP is declared after every 6 months in the month of April and October to be effective from January and July. Declare अगर अप्रैल में भी हो रहा है, लेकिन वो मिलना कब से स्टार्ट हो जाएगा? पिछली जनवरी से, जो जनवरी निकल गया, जो जनवरी का मंथ निकल गया उससे मिलना स्टार्ट होगा. एंड जुलाई में इफेक्टिव होगा, सॉरी जुलाई में नहीं, अक्टूबर में मिलना डिक्लेयर होगा, लेकिन इफेक्टिव कब से हो जाएगा? पिछली जुलाई से इफेक्टिव हो जाएगा. So what I am doing here, suppose I am writing here the months January, February, March, April. ठीक है, अब ये कहना क्या जा रहा है? ये कह रहा है कि अगर आप अप्रैल में भी इसको डिक्लेयर कर मान रहे हो, ठीक है, लेकिन ये इफेक्टिव कब से होगा? जनवरी से. तो इसका मतलब अप्रैल में जाकर के आपको जनवरी, फरवरी, मार्च का भी एरियर मिलेगा. टू पुट इन अदर वर्ड्स, जो मैं सिंपलर वर्ड्स में इसको बोलूं, आपको जब आप कहीं जॉब करते हो या कुछ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, डीए जो है साल में 2 बार डिक्लेयर करती है गवर्नमेंट, जनवरी, जुलाई. जनवरी वाला डीए अप्रैल में मिलना शुरू होगा, जुलाई वाला डीए अक्टूबर में मिलना शुरू होगा. जब जनवरी वाला डीए डिक्लेयर हो गया, इंक्रीज कर दिया उन्होंने परसेंटेज, लेकिन वो मिलना कब से शुरू होगा? अप्रैल में. तो अप्रैल में नया रेट का डीए मिलेगा, प्लस डीए के एरियर भी मिलेंगे. कितने मंथ के एरियर मिलेंगे? 3 मंथ के, जनवरी, फरवरी, मार्च. सिमिलरली आप फिर जुलाई पे आए, जुलाई में डीए डिक्लेयर हो गया, मिलना कब से शुरू होगा? अक्टूबर से. तो अक्टूबर में नया रेट का डीए मिलेगा, प्लस 3 मंथ का आपको एरियर भी मिलेगा, विच इज जुलाई, अगस्त, सितंबर. तो जो ये आप डीए एरियर कैलकुलेट करोगे इस कॉलम में, इस वाले कॉलम में, ये सिर्फ 2 ही बार कैलकुलेट होगा. एक बार ये कैलकुलेट होगा अप्रैल में यहाँ पर, और एक बार ये कैलकुलेट होगा अक्टूबर में. उसके अलावा ये पूरा जो कॉलम है आपका, दिस विल बी एम्प्टी. एक तो ये बात, ठीक है. अब हमें बहुत जरूरी है ये समझना कि कौन से मंथ में कौन सी रेट लगेगा डीए का. डीए के रेट्स आपको दिए हैं 35%, जो कि डिक्लेयर हुआ जनवरी 2010 में. हम बात कर रहे हैं मार्च 2011 की. अब मार्च 2011 से पहले जनवरी 2011 वाला डिक्लेयर हुआ है ना, लेकिन जनवरी 2011 वाला मिलना अभी शुरू नहीं हुआ. ये मिलना कब शुरू होगा? अप्रैल में. तो इसका मतलब इस मार्च में कौन सा डीए मिल रहा है आपको इस मार्च में जो डीए मिल रहा है वो मिल रहा है 45%, क्योंकि ये 51% वाला तो मिलना ही शुरू नहीं हुआ, ये तो मिलना ही आपको अप्रैल में स्टार्ट होगा. ठीक है, तो यहाँ मार्च में जो आप डीए देंगे दैट विल बी 45% ऑफ बेसिक प्लस डीपी. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इधर साइड में ये जो डीए रेट्स की आपको टेबल दी है ना, आपको ये भी यहाँ पर टाइप करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने क्या करना है, मैक्सिमम यूज करना है सेल रेफरेंसिंग का.
तो मैं डीए रेट्स यहाँ पर फटाफट लिख देती हूँ। दिस इज जनवरी 2010। जनवरी 2010 में डीए था 35%. देन जुलाई 2010, this is 45%. Then January 11, 51%. Then July 11 is 58%. And lastly, January 12 is 65%. These are the DA rates. अब हमने क्या बोला कि मार्च में जो DA मिलेगा that will be 45% of basic plus DP. ये आपका आ गया किसका DA? मार्च का DA. अप्रैल का DA जो मिलना शुरू होगा, अब हमें नया रेट का DA मिलना शुरू हो जाएगा, दैट इज 51%. ठीक है, तो अप्रैल का DA हो गया 51% मल्टीप्लाइड बाय बेसिक प्लस DP, क्लोज द ब्रैकेट, और इसमें हम DA रेट को फ्रीज कर देंगे क्योंकि वी वांट इट टू, हम इसको ड्रैग करना चाहते हैं. हम इसको कब तक ड्रैग करेंगे? अब ये वाला जो रेट है 51% वाला, ये कब तक मिलेगा? देखो, नया रेट डिक्लेयर होगा 58% जुलाई में, लेकिन मिलना कब से शुरू होगा? अक्टूबर से. दैट मीन्स ये सितंबर तक आपको मिलेगा. ठीक है, फिर अक्टूबर में जाकर के आपको 58% का रेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा. 58% मल्टीप्लाइड बाय बेसिक प्लस डीपी, क्लोज द ब्रैकेट, एंटर. अब ये रेट आपका कंटिन्यू रहेगा, सॉरी, ये रेट आपका कंटिन्यू रहेगा टिल फरवरी. तो आई होप डीए कैसे कैलकुलेट होना है दिस इज क्लियर. नाउ लेट्स कम टू डीए एरियर्स वाला पार्ट, विच इज अगेन a little important thing to understand in this question. See, अब हम बात करेंगे डीए एरियर्स की. इस क्वेश्चन में देखिए, आपको एरियर्स मिलेंगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. तो हम दो ही बार इसकी कैलकुलेशन करेंगे, अप्रैल में और अक्टूबर में. अब पहले मैं आपको अक्टूबर वाला एरियर निकालना सिखाती हूँ. ठीक है, आपका जो जुलाई 2011 में जो रेट डिक्लेयर हुआ, वो कितना डिक्लेयर हुआ? 58%. ये देखिए, 58% का रेट डिक्लेयर किया आपने जुलाई में, और वो मिलना कब से शुरू हुआ? अक्टूबर से. तो इसका मतलब जुलाई, सितंबर, अक्टूबर आपको मिलता रहा 51%. मिलना कितना चाहिए था? 58%. 7% कम मिला. ठीक है, डीए मिल किसके ऊपर रहा है? बेसिक प्लस डीपी. तो अब हमें अक्टूबर में बेसिक प्लस डीपी का जो ये डिफरेंशियल अमाउंट है 58% माइनस 51%, ये मिलना चाहिए. ठीक है, तो 3 महीने का निकालना है हमको, ये याद रखिएगा. 3 महीने का मतलब कि बेसिक अक्टूबर में, यहां से जुलाई से बेसिक प्लस डीपी का जुलाई का, प्लस अगस्त का, प्लस सितंबर का, इन तीनों मंथ का टोटल करके हम बोलेंगे कि ये जो डिफरेंशियल अमाउंट है दैट मीन्स 58% माइनस 51%, ये मेरा बनता है डीए एरियर. मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जुलाई 2011 में आपको मिलना चाहिए था 58%, बट आपको मिलता रहा 51%. 3 महीने आपको 58% मिलना चाहिए था, बट 51% मिला. तो डिफरेंशियल है जो, वो 7% का, वो हम इसको इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे. डीए बेसिक प्लस डीपी जुलाई, बेसिक प्लस डीपी अगस्त, बेसिक प्लस डीपी सितंबर, इसका हम डिफरेंशियल निकाल लेंगे. सो दिस विल बी योर DA areas for the month of October. ठीक है, अब बात करते हैं अप्रैल की. अब यहाँ पर कितना इजी था, क्योंकि मेरे पास जुलाई, अगस्त, सितंबर का मेरे सामने है, मैं इस लिस्ट में, बट अप्रैल का तो नहीं है. अप्रैल का तो मार्च का है मेरे पास, उसके ऊपर का मेरे पास नहीं है.
ठीक है। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फरवरी या मार्च एक बार इंक्रीमेंट या तो फरवरी में लगा है या मार्च में लगा है या जनवरी में लगा है, इन तीनों में से कहीं हो सकता है इंक्रीमेंट भी लगा हो। यहाँ पे मैं इंक्रीमेंट चेंज कर देती हूँ, सपोज इंक्रीमेंट लगा फरवरी में, ठीक है। तो अगेन ये तो अपने आप चेंज हो गया क्योंकि इसने तो वैल्यूज इस टेबल से निकाली, लेकिन हम जो यहाँ अप्रैल में कर रहे हैं उसकी वैल्यूज तो मेरे पास है ही नहीं। तो इसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा और इसको आप प्लीज ध्यान से समझिएगा। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर 3 केसेस मेरे बन सकते हैं। मंथ ऑफ इंक्रीमेंट के बेसिस पे या तो मंथ ऑफ इंक्रीमेंट हो सकता है जनवरी, या मंथ ऑफ इंक्रीमेंट हो सकता है फरवरी, या फिर मंथ ऑफ इंक्रीमेंट हो सकता है मार्च, ठीक है। अगर मंथ ऑफ इंक्रीमेंट मार्च है सपोज, ठीक है, मार्च की तो सैलरी मेरे सामने है, अगर इंक्रीमेंट लगा भी है तो भी उसकी सैलरी मेरे सामने है, तो हम कैसे निकालेंगे टोटल डी एरियर? मार्च की जो सैलरी मेरे सामने है, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे, उसको मैं डिफरेंशियल रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये मेरे पास एरियर आ गया मार्च का। लेकिन इसमें जनवरी और फरवरी का एरियर भी ऐड होगा क्योंकि ये मुझे एरियर कब मिलना है? अप्रैल में, तीनों मंथ का मिलेगा अप्रैल में। अब मान लो कि मार्च में इंक्रीमेंट लगा, तो जनवरी और फरवरी में जो बेसिक होगी वो मार्च से कम होगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, बेसिक में से इंक्रीमेंट का अमाउंट हम माइनस कर देंगे और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी कि ये आ गया जनवरी और फरवरी का बेसिक। अब इसके अंदर डियरनेस पे एडेड नहीं है, ठीक है। डियरनेस पे मुझे ऐड करके डिफरेंशियल रेट निकालना है क्योंकि हमारा रूल क्या कहता है, बेसिक प्लस डीपी। ये सिर्फ बेसिक आई, पुरानी बेसिक इंक्रीमेंट के बिना, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये 2 मंथ है, इनटू अब क्या करेंगे, अब देखो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी 1.5 से क्योंकि डीपी इज 50% ऑफ बेसिक। अगर बेसिक को मैं 100 इज्यूम करूं, डीपी को मैं 50 डालूं, तो टोटल कितना आता है 150, दैट इज 1.5 टाइम्स ऑफ बेसिक। तो अगर मैं बेसिक का 1.5 टाइम्स कर दूं तो मेरे पास बेसिक प्लस डीपी का टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसका 1.5 कर दिया, अब इसको मैं डिफरेंशियल रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये मेरा टोटल आ जाएगा एरियर टू बी पेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है। ये आ गए एरिया टू बी पेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। ये तब होगा इफ मंथ ऑफ इंक्रीमेंट इज मार्च। अगर मंथ ऑफ इंक्रीमेंट फेब हो जाए सपोज, तो फेब और मार्च की आप क्लब कर सकते हो सैलरी क्योंकि सेम सैलरी है बेसिक, ठीक है। आपके पास बेसिक सैलरी प्लस डीपी कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास फेब और मार्च की आ गई, और फिर इसको डिफरेंशियल रेट से मल्टीप्लाई कर दो। अब रह गया अकेला जनवरी, तो जनवरी में से हम बेसिक सैलरी में से क्या माइनस कर देंगे, इंक्रीमेंट, और इसका कर देंगे 1.5 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे डिफरेंशियल रेट के साथ। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या आ गया, टोटल एरियर इफ मंथ ऑफ इंक्रीमेंट इज फरवरी, इफ मंथ ऑफ इंक्रीमेंट इज जनवरी, तो फिर तो तीनों मंथ की सैलरी सेम क्योंकि जनवरी में इंक्रीमेंट लग गया, जनवरी की बेसिक, फरवरी की बेसिक, मार्च की बेसिक सेम है, तो हमने इसको इंटू 3 कर देना है और इसको कर देना है डिफरेंशियल रेट से मल्टीप्लाई। ये 3 केसेस आपके बनते हैं। क्योंकि 3 केसेस बनते हैं इसका मतलब हम क्या यूज करेंगे, इफ फंक्शन यूज करेंगे हम, है ना। इफ मंथ ऑफ इंक्रीमेंट इज मार्च तो क्या करे, इफ मंथ ऑफ इंक्रीमेंट इज फेब तो क्या करे, और अगर इन दोनों में से कहीं लाई नहीं करता तो क्या करे। ऑलराइट, इसी चीज को अब मुझे फंक्शन के रूप में यहाँ पे लिखनी है अप्रैल में। कैसे लिखेंगे, इफ मंथ ऑफ इंक्रीमेंट, ये मेरा मंथ ऑफ इंक्रीमेंट है, इफ मंथ ऑफ इंक्रीमेंट इज 3, क्योंकि यहाँ पे हम नंबर्स में लिख रहे हैं ना, अब मैं मार्च की बात कर रही हूँ तो मैं 3 लिखूंगी। इफ मंथ ऑफ इंक्रीमेंट इज 3, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे मार्च का बेसिक
प्लस मार्च का डीपी, ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो डिफरेंशियल रेट से। अब कौन सा है डिफरेंशियल रेट यहाँ पर? अभी तक आपको मिल रहा था 45%, अब मिलना है 51%, तो अब डिफरेंशियल रेट है 51 माइनस 45, क्लोज द ब्रैकेट, ठीक है। मार्च प्लस इसमें मुझे ऐड करना है जनवरी और फरवरी का, तो जनवरी और फरवरी की जो बेसिक होगी वो होगी बेसिक माइनस अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, फिर मल्टीप्लाई कर दोगे 1.5 से, फिर मल्टीप्लाई कर दोगे डिफरेंशियल रेट से, विच इज अगेन 51% माइनस 45%, क्लोज। ये आपका आएगा इफ मंथ ऑफ इंक्रीमेंट इज मार्च, मार्च का कर दिया। ये वही चीज मैंने लिखी है जो मैंने आपको नीचे यहां पर समझाई है, मार्च की और प्लस जनवरी फरवरी की, ठीक है। उसके बाद कॉमा, अभी एक कंडीशन और है, इफ मंथ ऑफ इंक्रीमेंट इज फरवरी। अगर मंथ ऑफ इंक्रीमेंट फरवरी है तो ये क्या करे, बेसिक प्लस डीपी, इसको मल्टीप्लाई कर दे 2 से, ठीक है, 2 महीने का हो गया, इसको फिर मल्टीप्लाई कर दे डिफरेंशियल अमाउंट से, और इसमें ऐड करेंगे जनवरी का। जनवरी का क्या होगा, बेसिक माइनस अमाउंट ऑफ इंक्रीमेंट, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1.5 से। 1.5 से हम वहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं जब हम बेसिक प्लस डीपी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। ये आपका आ गया इफ मंथ ऑफ इंक्रीमेंट इज फरवरी। और अगर इन दोनों में से कोई केस नहीं है, ना तो मार्च है ना फरवरी है, तो एक ही केस बचेगा, इसलिए हम दोबारा इफ नहीं लगाएंगे। तो ये क्या करे, सिंपल बेसिक प्लस डीपी, और इसको मल्टीप्लाई कर दे 3 से, 3 मंथ्स का हो गया, और फिर मल्टीप्लाई कर दे डिफरेंशियल रेट से, एंड क्लोज द ब्रैकेट, क्लोज द ब्रैकेट, क्लोज द ब्रैकेट। ये आपका फॉर्मूला बनता है टू कैलकुलेट डीए एरियर्स। यहाँ पर आप कुछ भी लगा के देख लो, मंथ ऑफ इंक्रीमेंट 5 कर लो, उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर सैलरी चेंज कर लो, ये उसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। ऑल राइट, नाउ कमिंग टू HRA। अब बाकी सब चीजें बहुत सिंपल हैं, क्योंकि बाकी सब के लिए क्लियरली फॉर्मूलाज गिवन है आपको। फॉर HRA इट सेज HRA to be paid 30% of basic plus DP to those whom HRA payable is yes। तो आपको सिंपल कंडीशन है यहाँ पर चेक करना है, इफ HRA payable is yes, कि कौन से सेल में है ये, I3 में। इफ दिस इज इक्वल टू yes, यहां पर अगर yes लिखा है तो आपको कितना HRA देना है, 30% मल्टीप्लाइड बाय बेसिक प्लस डीपी। और अगर यहाँ yes नहीं लिखा है तो कॉमा 0, इसमें हम I3 को फ्रीज कर देंगे, प्रेस एंटर। yes लिखा था, इसने HRA कैलकुलेट कर दिया। The moment you choose no here, you can see HRA will be 0. Coming to traveling allowance. Traveling allowance is to be paid 800 if basic salary is less than 12,000. Again, there is a condition. If basic salary is less than 12,000, so it is 800. Otherwise, it is 1,000. और आप इसको ड्रैग कर दीजिए, you will get
the traveling allowance. Similarly, for CCA, if basic salary is less than 12,000, CCA is 300, otherwise it is 500. So this is CCA. Gross हमें सबको पता है, gross is sum of basic, DP, DA, arrear वगैरह सब कुछ मिला करके आप यहाँ पर gross निकाल सकते हैं और आप इसको ड्रैग करेंगे तो आपके पास every month का gross आ जाएगा. Fine. GPF, gross provident fund, gratuity and provident fund, this is 10% of 10% of basic plus DP. So bracket start, अगर bracket नहीं लगाऊंगी तो ये बोर्ड मास का रूल लगा देगा और सिर्फ बेसिक का 10% लेके उसमें DP को as it is ऐड कर देगा, जो कि सही नहीं होगा. So this is GPF, 10% of basic plus DP. Fine. Coming to IT, IT is okay. 10% of basic plus DP subject to minimum of 2000. Okay. Subject to minimum of 2000. ये चीज 2000 कम से कम हमें 2000 देने ही देने हैं. ठीक है. It is subject to minimum of 2000. That means अगर ये चीज 2000 से कम निकलती है तो हमें 2000 देने ही है. इसका मतलब मैं यहाँ पर फॉर्मूला लगाऊंगी मैक्सिमम का, so that अगर ये वैल्यू देखो बहुत सिंपल सी बात है, इट इज सेइंग 10% ऑफ बेसिक प्लस डीपी, 10% ऑफ बेसिक प्लस डीपी निकालो, मान लो 1200 आ गया, लेकिन वो कहता है कम से कम 2000 तो हमने देना ही है, तो आप कितना दोगे? 2000 दोगे. इसका मतलब जो चीज कैलकुलेट कर रहे हो और 2000, इन दोनों में से जो चीज मैक्सिमम है वही देंगे, इसीलिए हमने कौन सा फंक्शन लगाया है? मैक्सिमम फंक्शन. IT is 10% of gross, so here I will be calculating 10% of gross. ये आपका IT आ गया, IT को आप ड्रैग कर देंगे, this is your IT. Then net salary, net salary हमें पता है gross minus GPF minus IT. So this is your net salary. All right. Question के end में it is also saying also compute totals of all the components of salary. तो हम totals निकाल देंगे. Totals हमें basic salary का करना है, तो हम basic salary के कॉलम का total कर देंगे और फिर उसको हम drag कर देंगे तो मेरे पास सारे उसका total आ जाएगा. ठीक है. This is how this question is to be done. All right. So keep practicing, keep learning. Thank you so much.